Uh, Before going through conditional operator or ternary operator, you must have to know about condition. What is condition? Condition in your daily life, you use many conditions, and on that condition, on the basis of that conditions, you decide what to do and what not to do. Okay, for example, if you want to go outside and play with your friends in the playground, then the condition will be if there is not raining outside, then you can go and you can play with with your friends. Otherwise, if it is raining, then you cannot go outside and play in the cricket or football in the playground. Okay, so do you understand? If the condition is true, like if there is raining, so it will be true. You are saying if it is raining, then I cannot go. And if it is not raining, then I can go and play football or cricket or any uh, game. Okay. So the condition, on the basis of that condition, you are deciding what to do and what not to do. Going outside and not going outside. So if the condition is true, let suppose the condition is true if uh, the rain is if there is no raining outside, so then we say the condition is true. And if there is raining, then the condition is false. If there is no raining, then you go and you play the football. But if there is raining, then you cannot go and you stay at your home. समझ आ रही है कुछ बात की स्टूडेंट्स? ये कंडीशनल ऑपरेटर हमने कल भी पढ़ा था. कंडीशन कहते हैं एक शर्त को. हम शर्त के बेस पे कोई डिसीजन लेते हैं कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है. अब आप एक एग्जाम्पल, जनरल डेली लाइफ की एग्जाम्पल ले सकते हो कि शर्त ये है कि अगर बारिश ना हो तो आप खेलने जा सकते हो, और अगर बारिश होगी तो आप खेलने नहीं जाओगे. या कोई और आप एग्जाम्पल ले सकते हो. ठीक है. आप अपने दोस्त से मिलने जा रहे हो उसके घर, तो शर्त इसमें क्या है कि अगर वो घर पे मौजूद है, अगर वो घर पे मौजूद है तो आप उससे मिलने जा सकते हो, और अगर वो घर पे मौजूद नहीं है तो आप उससे मिलने नहीं जा सकते. ठीक है. तो इस तरह के कंडीशंस हमारे सामने आते हैं और हम उसी के बेस पे डिसाइड करते हैं कि हम क्या काम करने जा रहे हैं और क्या काम नहीं करेंगे. ठीक है. तो इसी तरह सेम ये यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि अगर कंडीशन सही है, ट्रू है, कंडीशन अक्सर हमें रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में देते हैं, जो बुलियन रिजल्ट कहलाते हैं, ट्रू या फॉल्स. ठीक है. तो अगर कंडीशन ट्रू है तो आपने ये पहला वाला एक्सप्रेशन जो है ये इवालुएट करना है या एग्जीक्यूट करना है, चलाना है. और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या होगा? फॉल्स होगा. तो अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपने ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये एग्जीक्यूट नहीं करना है, और आपने नेक्स्ट जो इसके बाद एक्सप्रेशन है, जो इक्वेशन है या कोई भी स्टेटमेंट है, तो उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ठीक है. यानी कंडीशन ट्रू है तो पहला वाला, और कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा वाला. इसकी एग्जांपल आप देख सकते हो कि ये एक कंडीशन है. कंडीशन क्या है कि अगर k की जो वैल्यू है वो 15 से ग्रेटर है, if the value of k which is whatever greater than 15, then the condition will be what? True. अगर 15 से ज्यादा होगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी ना, क्योंकि इसने लिखा है कि k इज ग्रेटर देन 15. अगर ऐसा है तो आप क्या करें?
execute the first expression. But if you have 14, k is equal to 14 or 13 or less than that numbers, then the condition gets wrong, because 14 is not greater than 15. 16 is greater than 15. But if you have the value 14 or 13 or 10 or 1 or 2 less than 15, then the condition will become false. And for false condition, you have to leave the first expression and you have to execute the next expression, which is the second expression. In the first expression, it says multiply these both variables x and y. But in second, it says don't multiply it, just add these two. So these are two different expressions, and on the basis of the result of this condition, we are going to execute any one of them. ठीक है, तो अभी समझ आ गई आपको ये बात? अगर समझ आई हो तो जस्ट रेज योर हैंड्स दैट, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि आपको समझ आ गई है और मैं फर्दर मूव करूँ. अगर समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है. शाबाश. अब्बास खटक को कंडीशनल ऑपरेटर की समझ आ गई है. सर ये एक दफा फिर समझा दें, अभी मैं आया था ना, नेट का प्रॉब्लम है सर. अच्छा ठीक. अच्छा देखिए, कंडीशन के बेस पे हम डिसाइड कर, इसको जनरल लिखने का तरीका ये है, ये सारा कंडीशनल ऑपरेटर कहलाता है क्योंकि हमने इसमें कंडीशन यूज की है और कंडीशन के बेस पे ये कैलकुलेशन हो रही है. ठीक है, तो कंडीशन क्या है? कोई भी शर्त आप कहते हो कि इफ, अगर एक वेरिएबल है आपके पास x इज लेस देन 5, अगर आपके पास x एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, अगर वो वैल्यू 5 से छोटी है तो क्या करो, इसको चेक करो, यानी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. और फिर क्या करो, हमारे पास एक इक्वेशन है कि 5 + 2, ठीक है, और फिर हम फुल कॉलन लगा लेते हैं इस तरह, दो डॉट्स, और फिर कहते हैं कि कुछ और लिख लेते हैं. चलो 5 + 2 से डिफरेंट कुछ लिख लेते हैं, 5 - 2 कर लो, और आखिर में सेमी कॉलन. ये देखो, यही चीज मैंने इस तरह यूज की. ये तो जनरल हम लिखते हैं कि एक्सप्रेशन 1 होना चाहिए, एक्सप्रेशन 2 होना चाहिए. ये एक्सप्रेशन 1 है और ये एक्सप्रेशन 2 है. ठीक है, अभी आपने कहा कि ये कंडीशन आपने इवालुएट करनी है, यानी चेक करनी है, रिजल्ट इसका निकालना है ट्रू या फॉल्स में. तो अगर फर्ज करो आपकी x की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x in the place of x. 3 is less than 5, छोटी वैल्यू है, तो ये कंडीशन क्या हो गया हमारे पास? ट्रू हो गया. तो जब ट्रू होगा तो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन जो है उसको सॉल्व करो. ठीक है, और अगर मिसाल के तौर पर इसकी वैल्यू 6 है तो फिर क्या होगा? फिर ये 6 is less than 5 is wrong. Its result is wrong. Its Boolean result is wrong because it gives us false result. क्योंकि 6 जो है वो 5 से छोटा नहीं है बल्कि बड़ा है, तो ये हमारा ये कंडीशन रॉन्ग हो गया. तो फिर रॉन्ग के बेस पे हमने क्या करना है? ये वाला छोड़ के, ये फर्स्ट वाला छोड़ के दूसरा वाला कैलकुलेट करना है. तो हमारा रिजल्ट फिर क्या आएगा? 3 आएगा, -2 हमने किया. ठीक है, यहाँ पे 7 आएगा अगर सही है, और अगर गलत है तो रिजल्ट जस्ट 3 आएगा. इसको हम किसी भी वेरिएबल को असाइन कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं a. ठीक है, तो a की वैल्यू अगर ये सही है, अगर ये कंडीशन सही है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी?
a की वैल्यू विल बी 7. But if the condition is wrong, it gives us the result false, then the value of a will be, the value of a will be, okay, if the condition is wrong, then, sorry, my mouse is just not working. I'm checking. If the condition is wrong, then the value of a will be 3. समझ आ गई है आपको? ठीक है बलाश मरी? यस सर, आ गई। अभी समझ आ गई है ना? तो ये कंडीशनल ऑपरेटर Yes, sir. कहलाता है। ठीक है, यानी कंडीशनल ऑपरेटर इस तरह यूज होता है, कंडीशन के बेस पे हम कोई दो में से किसी एक को एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं या एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कंडीशन अगर सही है तो पहला वाला एक्सप्रेशन होगा, बाकी दूसरे को छोड़ के। ठीक है, ये वाला होगा। और अगर कंडीशन गलत है तो पहला वाला छोड़ के दूसरा वाला सॉल्व होगा, और वो जो भी वैल्यू आएगी वो एक ही वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, कोई भी वेरिएबल हम का नाम दे देते हैं और असाइन करेंगे उसको वैल्यू। तो ये था हमारा कंडीशनल ऑपरेटर, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और ये टॉपिक जो है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है। इफ़ एल्स बोलते हैं इसको, ये प्रोग्रामिंग में करते हैं। ये भी कंडीशन के बेस पे डिसाइड करता है कि आपने क्या, ये सेम इसी की तरह है लेकिन उसका पैटर्न जो है, फॉर्मेट जो है वो चेंज है। तो इसमें कहते हैं कि अगर k की जो भी वैल्यू है वो 15 से बड़ी है तो फिर क्या करो, ट्रू हो जाएगा। तो जब ट्रू होगा तो ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करो, a इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, सेम इसी की तरह। और अगर नहीं तो एल्स कीवर्ड हम लिख लेते हैं। एल्स एक कीवर्ड है, कंप्यूटर को पता होता है कि एल्स किस काम के लिए यूज होता है। तो वो फिर अगर जब गलत हो जाती है ये कंडीशन तो इसको छोड़ के एल्स में चली जाती है, और एल्स के बाद जो कुछ भी हमने लिखा होता है उसको एग्जीक्यूट कर देती है। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू फुली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर। इसके लिए हम जाके ये डेफ सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर खोलते हैं, जो कि सी लैंग्वेज के लिए हमारा IDE होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इसको बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, फाइल में जाके न्यू सोर्स फाइल में क्लिक करते हैं और फिर प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम में हमारा क्या है कि हमने कंडीशनल ऑपरेटर यूज करना है। तो कंडीशनल ऑपरेटर में इन्होंने कहा है कि इंटीजर डेटा टाइप के 3 वेरिएबल डिफाइन करो, 1, 2 और 3, ए बी, और एक का नाम दिया उसने लार्जर। ठीक है, फिर उसने कहा प्रिंट एफ इंटर 2 इंटीजर्स, यानी आपसे वो पूछेगा, आपसे मांगेगा कि 2 नंबर्स इंटर करो आप। तो स्कैन एफ की मदद से आपने 2 नंबर्स इंटर किए ए और बी में। अभी हमारे पास ए और बी में 2 नंबर्स पड़े हैं। ठीक है, अभी लार्जर इज इक्वल टू, ये लार्जर वो वेरिएबल उसने लिखा जो हमने डिफाइन किया है, उसके लिए उसने कंडीशनल ऑपरेटर यूज किया कि अगर आपने जो 2 नंबर्स इंटर किए उसमें अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है तो फिर क्या करो, पहला नंबर इसको दे दो। ठीक है, यानी अगर बड़ा है तो वो ट्रू हो जाएगा, तो पहला इसको मिल जाएगा। ठीक है, लार्जर इज इक्वल टू ए हो जाएगा। और अगर ये गलत हो गया, यानी अगर वो आपने जो नंबर ए में एंटर किया है वो बी से बड़ा नहीं है, तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो फिर क्या करेगा, लार्जर इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो अभी लार्जर में जो कुछ भी वैल्यू सेव होगी वो हम फिर नेक्स्ट प्रिंटएफ में द लार्जर नंबर इज %d, और वो प्रिंट कर देते हैं, वो हमें इस तरह आउटपुट दे देता है। ठीक है, तो ये किस तरह हम ये प्रोग्राम सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, हैश इंक्लूड और stdio.h, ये लाजमी चीज़ है, ये आपने लिखना है। फिर एक मेन फंक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं, ये भी लाजमी होता है हर प्रोग्राम के लिए।
फिर इसके बाद एक करली ब्रैकेट स्टार्ट होती है और करली ब्रैकेट ख़त्म होती है और इसके बीच में हम प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम इसको ये मेन फंक्शन की बॉडी कहलाती है, ठीक है। नाउ हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो वेरिएबल्स लेते हैं जिसमें हमने दो वैल्यूज इंटर करनी है और हम उसको कहते हैं कि उसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर ए बी या कोई भी आप ले सकते हैं। आप num1 लिख सकते हैं, मैं कहता हूँ num1 कोई भी नंबर एक, और num2 कोई भी नंबर 2, ठीक है, बस यही। फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमें स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए printf, डबल कोट्स के अंदर हम लिख लेते हैं /n, यानी न्यू लाइन से आप स्टार्ट करो, लिखना क्या, इंटर टू नंबर्स, यानी हमसे पूछते हैं कि दो नंबर्स आप कीबोर्ड से इंटर करो। जब ये ख़त्म हो जाता है लास्ट में सेमीकोलन लिखते हैं। और जब हमने इससे पूछा कि आप दो नंबर्स इंटर करो, ठीक है, कंप्यूटर यूज़र से हम पूछ रहे हैं, जो आप यूज़र हो या आप प्रोग्राम को चलाओगे तो आप नंबर्स इंटर करोगे, तो इंटर करने के लिए हम scanf फंक्शन यूज़ करते हैं। scanf फंक्शन में ये होता है कि डबल कोट्स के अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, %d, इंटीजर हमने डिफाइन किया है यानी वो नंबर होंगे, तो %d हमने लिखा। चूंकि दो नंबर्स हमने एंटर करने हैं तो थोड़ा स्पेस देके फिर एक %d लिख लेते हैं और फिर डबल कोट्स के बाद एक कामा, और कौन से वेरिएबल्स में वो नंबर्स दे रहे हैं उसके साथ ये वाला साइन %, सॉरी ये एंड। num1 में पहला %d यानी पहला नंबर जाएगा, कामा, दोबारा ये साइन एंड, और num2 में दूसरा नंबर आप इंटर करोगे, ठीक है। अभी दो नंबर्स आपने इंटर कर लिए num1 और num2 में। अभी इन num1 और num2 के साथ हम क्या करें, हम कहते हैं कि अगर num1 जो हमने इंटर किया वो अगर बड़ा है, ग्रेटर देन num2, तो इसको इस तरह ब्रैकेट में बंद कर दें, कंडीशनल ऑपरेटर लिख रहे हैं हम, ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं और ब्रैकेट के बाद क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, और फिर कुछ लिख लेते हैं कि आप क्या करो, वो वैल्यू अगर num1 जो है num2 से ज्यादा है तो क्या करो, num1 प्रिंट करो, num1, और अगर नहीं तो फुल कॉलन के बाद num2, हम इसको कहते हैं कि वो प्रिंट करो, ठीक है। और ये हम किसी वेरिएबल को, ये पूरा जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है, किसी भी वेरिएबल को हम असाइन कर देते हैं और उस वेरिएबल का नाम होना चाहिए, कोई भी आप रख सकते हैं। तो हम बोलते हैं ग्रेटर, ठीक है, हमने ये नाम रखा, तो हम इसको यहाँ पे डिक्लेयर भी कर लेते हैं कि ग्रेटर, हम एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेटर। अभी ग्रेटर में जो कुछ भी वैल्यू है उसको हम कहते हैं कि वो प्रिंट करो, printf, स्क्रीन पर हमें दिखाओ। डबल कोट्स के अंदर हम लिख लेते हैं /n, यानी न्यू लाइन में हमें दिखाएगा द ग्रेटर, इस तरह हम लिख लेते हैं कुछ, द ग्रेटर नंबर you have entered
इज %d, और वो किस वेरिएबल में पड़ा है वो वैल्यू, वो है ग्रेटर में। ठीक है, सेमीकोलन बंद कर। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। हम जाके एग्जीक्यूट कर लेते हैं, पहले कंपाइल करते हैं कि कोई गलती तो नहीं है, फिर हम वो हमसे पूछता है कि ये सेव करो। हम किसी भी नाम से इसको सेव कर लेते हैं इस प्रोग्राम को। यहाँ पे ये कहता है कि गलती नहीं है, एरर 0 है। ठीक है, अभी फिर हम एग्जीक्यूट में जाके इसको रन कर देते हैं, तो ये हमें ये स्क्रीन पे दिखाएगा कि ये printf जो आपने पहला लिखा है इंटर टू नंबर्स, आपको दिखाई दे रहा है कि इंटर टू नंबर्स, इसका मतलब है वो हमसे नंबर्स मांग रहा है। तो scanf की मदद से हम दो नंबर्स एंटर कर रहे हैं, num1 में और num2 में। तो num1 में मैं कहता हूँ कि 5 मैंने एंटर किया, और फिर एक स्पेस देके दूसरा नंबर एंटर करूंगा, 8 मैंने एंटर किया। ठीक है, तो क्या ख्याल है ये हमें रिजल्ट क्या देगा? हमने यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर यूज किया है कि अगर num1 इज ग्रेटर देन num2, अगर 5 इज ग्रेटर देन 8, तो फिर क्या करो, num1 हमें प्रिंट करो, यानी ग्रेटर की वैल्यू क्या होगी, num1 होगी। और अगर ये गलत हो गया तो ग्रेटर वैल्यू कौन सी होगी, num2 होगी। तो अभी रिजल्ट हमें क्या आएगा, ये हमें रिजल्ट देगा 8। क्यों? ये बोलता है, ये जो हमने प्रिंट में लिखा है, द ग्रेटर नंबर यू हैव एंटर्ड इज %d ग्रेटर। ठीक है, तो वो 8 इसीलिए हमने उसने हमें दिखाया क्योंकि हमने कंडीशनल ऑपरेटर में लिखा था कि अगर आपने जो नंबर वन एंटर किया, ये 5 एंटर किया, अगर ये दूसरे नंबर से यानी 8 से बड़ा है तो ये तो बड़ा नहीं है ना। ठीक है, इसको अगर दोबारा हम एग्जीक्यूट करें, रन, और हम इसको बोले कि 8 या 7 या 5, ठीक है, दो नंबर्स हमने एंटर किए, तो अब ये हमें रिजल्ट क्या दे रहा है, 7। द ग्रेटर नंबर यू हैव एंटर्ड इज 7। ठीक है, तो ग्रेटर जो भी होगा वो ये ग्रेटर की वैल्यू होगी, यानी ग्रेटर हमें वो दिखाएगा। ठीक है, तो इसकी समझ आ गई आपको कि किस तरह हम ये कंडीशनल ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, इसके लिए देखते हैं। अभी देखो, हमने दो वेरिएबल्स, पहला num1 और num2 के नाम से, यानी दो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए। ये क्यों डिक्लेयर किए? क्योंकि हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं कि हम दो नंबर्स एंटर करेंगे और वो चेक करेगा कौन सा बड़ा नंबर है और कौन सा छोटा नंबर है, तो वो हमें जस्ट बड़ा नंबर प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो हमने कहा कि तुम स्क्रीन पर प्रिंट करो इंटर टू नंबर्स, इस तरह प्रिंट हो जाएगा हमारे स्क्रीन पे जो आपने देखा। फिर कर्सर इधर ब्लिंक करेगा, यानी वो पूछेगा कि आप यहाँ पे नंबर इंटर करो। तो इंटर करने के लिए स्कैन एफ फंक्शन यूज होता है। ये %d और %d दो दफ़ा इसलिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखे हैं क्योंकि हमने दो नंबर्स इंटर करने हैं। ठीक है, तो या तो ये आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, ये दो लाइन में भी लिख सकते हो। ठीक है, पहला %d और फिर दूसरा %d दूसरे लाइन में, लेकिन आसानी के लिए और कोड कम लिखने के लिए हम एक ही लाइन में दोनों को लिख लेते हैं। ठीक है, ये %d जो है ये इस वाले num1 में, यानी वो num1 में जो भी वैल्यू हम इंटर करेंगे उसका फॉर्मेट चेक करेगा, और ये %d जो है ये दूसरे num1 में, जो हम num2 में जो हम वैल्यू इंटर करेंगे उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर
है और उसका फॉर्मेट चेक करेगा। यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, ये हमने टॉपिक पढ़ा है कि ये डेटा टाइप को चेक करता है कि आया तुमने जो नंबर इंटर किया है क्या वो सही है या गलत है। ठीक है, तो ये सब कुछ फॉर्मेट चेक करता है, इसके मुताबिक होना चाहिए। अगर आपने पॉइंट वाली वैल्यू यहाँ पे इंटर की तो ये गलती, यानी आप गलती करोगे, यानी वो आपको बोलेगा कि आपने गलत फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन किया है। ठीक है, तो आपने अभी दो नंबर्स इंटर कर दिए यहाँ पे। अभी ये जो हमने ये कंडीशनल ऑपरेटर का इक्वेशन बनाया है कि कंडीशनल ऑपरेटर यूज किया हमने कि वो num1 और num2 जो हमने इंटर किया, तो हमने कहा कि num1 और ग्रेटर देन num2। num1 इज ग्रेटर देन num2, ये हमारा कंडीशन है। और ये चेक करो और फिर इसके बेस पे क्या करो, इसके रिजल्ट के बेस पे हमें रिजल्ट दे दो। रिजल्ट num1 फुल कॉलन, ये एक डॉट है, फुल कॉलन इस तरह, और num2, ठीक है, और सेमी कॉलन। अभी n1 में हमने 5 इंटर किया है और n2 में हमने 8 इंटर किया है। तो हम कहते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 8। तो ये सही हो गया या गलत? तो ये गलत हो गया, फॉल्स हो गया। तो गलत के लिए क्या है, दूसरा हमने एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करना है। तो दूसरा क्या है, n2 हमारे पास क्या है 8, तो इसका आंसर 8 होगा। ठीक है, किसी भी वेरिएबल को ये जिस तरह हमने यहाँ पे ग्रेटर डिफाइन किया है, तो यहाँ पे हमने a इसको बताया कि a की वैल्यू उसको दो, तो a की वैल्यू अभी क्या होगी 8 होगी। यानी ये ग्रेटर फाइंड कर रहा है, दोनों वैल्यूज में ग्रेटर कौन सा है तो वो फाइंड कर रहा है। ठीक है, आप कोई भी इस तरह की इक्वेशन ये कंडीशन यूज कर सकते हो। लेस देन अगर आप करोगे तो फिर वैल्यू क्या आएगी, फिर a की वैल्यू 5 आएगी, और n1 इज लेस देन n2, तो यहाँ पे ये वाला एग्जीक्यूट होगा और दूसरा नहीं होगा। तो फिर a की वैल्यू हमारे पास 5 आएगी। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो प्रिंट, यानी आपने यहाँ पे लिखा द ग्रेटर नंबर यू हैव एंटर्ड इज %d। अगर आप इसको शॉर्ट करके लिखो, आंसर इज %d। तो अभी एग्जीक्यूट करके देखो, रन, तो आप देख सकते हो कि ये आपसे पूछ रहा है इंटर टू नंबर्स। मैंने 2 नंबर्स इंटर किए, 3 एंड 9। ठीक है, तो इंटर की प्रेस करने से मुझे रिजल्ट मिलेगा। सॉरी, ये एग्जीक्यूट कंपाइल करो पहले, 0 एरर है, फिर रन करो इसको। अभी आपसे पूछ रहा है इंटर 2 नंबर्स, 3 स्पेस 9, इंटर की प्रेस करो। अभी देखो, अभी आपको वो आंसर दे, आंसर इज 9, यानी वो ग्रेटर वैल्यू उसने आपको दिखाई, आंसर इज 9। तो इस प्रिंट एफ में आप जो कुछ भी जिस तरह भी लिखोगे उसी तरह आपको प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो स्टूडेंट सबको आप ये कंडीशनल ऑपरेटर की समझ आ गई। आज हमने कंडीशनल ऑपरेटर को प्रैक्टिकली प्रोग्राम में भी यूज किया कि किस तरह कंडीशनल ऑपरेटर काम करता है। तो सबको समझ आ गई है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर है तो पूछ सकते हो अभी, शाबाश।
एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अगर सबको समझ आ गई है तो यू मस्ट रेज योर हैंड्स। शाबाश। अब्बास खटक, अब्बास खटक को समझ आ गई है, उसकी अटेंडेंस में लगा रहा हूँ। अगर किसी ने हाथ नहीं उठाया तो उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। 20। अब्दुल्ला बिन सिकंदर को समझ आ गई है। 20। मोहम्मद अयान खान को समझ आ गई है? यस सर। ठीक है, अयान किधर है? ये 20। अच्छा, शहाब खटक को भी समझ आ गई। और कौन है? मोहम्मद अली, आपको समझ नहीं आई मेरे ख्याल से। मोहम्मद अली को समझ नहीं आई है? अगर नहीं आई है तो वो रिप्लाई करे ताकि हम समझ जाए कि मोहम्मद अली हमारे सामने क्लास में बैठा हुआ है और वो प्रेजेंट है। अगर रिप्लाई नहीं करेगा तो हम समझेंगे कि वो मौजूद ही नहीं है। तो जब मौजूद नहीं है तो उसकी अटेंडेंस क्यों हम लगाएं? मोहम्मद अली, जस्ट रिप्लाई। शाबाश। आर यू देयर मोहम्मद अली? मोहम्मद अली प्रेजेंट है या बॉक्सिंग करने गया है? मोहम्मद अली इज नॉट प्रेजेंट। मोहम्मद अली, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा आपकी तरफ से, तो इसका मतलब है आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू मार्क योर अटेंडेंस। ठीक है। अब्बास खटक, अब्दुल्ला बिन सिकंदर, अयान खान एंड शहाब खटक, they have replied and they have already understood the topic. Okay, but Muhammad Ali is not present in the class and he didn't reply, and we are not going to mark his attendance. So okay students, और ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं।